Stop it. ते मला बघितलं म्हणजे बघत होती की पाऊस लागल मला वर्षी. Gives some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace.
so please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me. Books and old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. All right, hello, and welcome to the day one of 5 days data science workshop. Can you guys please confirm my voice is loud and clear to all? Can you guys please confirm that in the chat? My voice is loud and clear to all. Can you please confirm that? Okay, that's great, that's great, that's great. Thank you so much for joining. और आज हम यहाँ पर डे वन में दैट इज 5 days ऑफ डेटा साइंस वर्कशॉप, यहाँ पर पहले दिन में हम बहुत सारी चीजें आज करने वाले हैं. लेट मी जस्ट टेल यू द होल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कशॉप, दैट हाउ वी आर गोइंग टू बी कंक्लूडिंग द वर्कशॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दिस पर्टिकुलर डोमेन वर्क्स, व्हाट इज द डिमांड ट्रेंड, और उसके बाद यहाँ पर हम एक रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद एंड में जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो डेटा साइंस डोमेन में हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और बहुत सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं. 100% हम यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने करियर के बारे में, एंड हाउ मेनी ऑफ यू विल गोइंग टू लाइक ज्वाइन दिस वर्कशॉप टिल द एंड. आप में से कितने लोग यहाँ पर टिल द एंड इस वर्कशॉप को कंक्लूड करने वाले हैं? लेट मी सी बूम इन द चैट, लेट मी सी बूम इन द चैट. हाउ मेनी ऑफ यू विल जॉइन टिल द एंड? बिकॉज वी आर गोइंग टू लाइक क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, और साथ में हम यहाँ पर करियर के बारे में भी जानने वाले हैं, दैट व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इनटू द डेटा डोमेन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग. Those who will attend this particular workshop till the end,
those participants who are going to attend this workshop till the end, we are going to share 2 premium courses with you. We have our own edtech platform. Let me just tell you about this. So we have our own edtech platform that is known as Jobas Learnings. Just a second. So this is the edtech platform, and from here you'll receive 2 premium courses if you'll join this workshop, if you'll just conclude this workshop till the end. All right. So what are the courses? First of all is Excel. So you're going to receive this particular course, which is known as Excel Essential Formulas and Function. How many of you uses Excel in their daily work? How many of you uses Excel in their daily work? Let me see in the chat. Let me see in the chat. Okay, great. And in this particular course, in this particular masterclass that you are going to be receiving just for free, 100% off, you're going to be learning that what are the different things, how you can implement the text functions, how you can implement the date and time functions, how you can implement the logical functions, how you can implement the data validation and filter functions. But you have to you have to be into the workshop till the end for getting this particular course. All right. So this was the first bonus. Talking about the second bonus is LinkedIn. How many of you uses LinkedIn? How many of you uses LinkedIn? Let me see in the chat. How many of you uses LinkedIn? All right, great. But how you can leverage the power of LinkedIn, how you can leverage the power of LinkedIn till its best, how you can you can be a student, you can be a job seeker, you can be a business owner, you can be a freelancer. So how you can use the LinkedIn, how you can use the power of LinkedIn, and what are the different tools that you should be using in order to use the power of LinkedIn till its best. All right, so you are going to be receiving this particular course which is known as Turbocharge LinkedIn. लेकिन इन दोनों कोर्स को लेने के लिए आप इस वर्कशॉप में till the end रहने चाहिए. All right, so let me see boom in the chat. How many of you are excited to learn about data science? All right, let me see boom in the chat. Let's just build some kind of excitement. Let's just build excitement for the workshop. Let me see boom in the chat. All right, that's great. That's great. Okay. तो यहां पर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिमांड ट्रेंड के बारे में समझने वाले हैं. देखिए, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखें, आप किसी भी डोमेन में एंटर करने के बारे में सोचें, तो पहली चीज ये है कि आप डिमांड ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर डोमेन में डिमांड नहीं है, दैट मीन्स वहां पर आप एक बेटर करियर ग्रोथ नहीं ले सकते, आप मॉनेटरी ग्रोथ एक पॉइंट पर ही ले सकते हैं. तो यहाँ पर डिमांड ट्रेंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस डोमेन में बेटर ग्रोथ कर सकते हैं. तो टॉकिंग अबाउट द डिमांड ट्रेंड इन द डेटा डोमेन, ग्लासडोर हैव रैंक्ड डेटा डोमेन एट द सेकंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ जॉब इन 2021 में. हर कोई डोमेन अपनी डाउन ट्रेंड पे जा रहा था, हर कोई डोमेन लैग कर रहा था, नीचे जा रहा था, लेकिन डेटा डोमेन एक ऐसा डोमेन है जो कि अपने अप ट्रेंड पर था. सिर्फ 2021 में इतनी ज्यादा जॉब्स जो है वो डेटा साइंस डोमेन में पोस्ट की गई दैट ग्लासडोर, वी नो अबाउट ग्लासडोर, राइट? हमें ग्लासडोर के बारे में पता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनीज, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, ग्लासडोर इज लाइक द इंडस्ट्री लीडर एंड ग्लासडोर हैव रैंक्ड डेटा साइंस डोमेन एट द सेकंड प्लेस. तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हाउ मेनी जॉब्स हैज बीन पोस्टेड इन जस्ट 1 ईयर, और वो भी ऐसा ईयर जिसमें पूरा वर्ल्ड रिसेशन में था, जितनी भी कंपनीज थी वो रिसेशन में थी और वो ले ऑफ्स कर रही थी अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन डेटा साइंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी. अकॉर्डिंग टू द US Bureau of Labor Stats, data science will grow about 28% by 2026. 2026 तक, जैसा कि मैंने कहा कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये पर्टिकुलर डोमेन और ज्यादा ग्रो करने वाला है. तो यहां पर 2026 तक ये पर्टिकुलर डोमेन जो है वो 28% तक और ज्यादा ग्रो करने वाला है. ये एक ऐसा डोमेन है जो कि एक्सपोनेंशियल अपने अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर रहा है. अब कैसे कर रहा है, ये बात सही है या नहीं, इसको मैं आपसे प्रूव करवाना चाहता हूं. ऑलराइट, सो जस्ट हियर दिस थिंग वेरी यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस. थोड़ा सा फोकस हो गया, इस बात को सुनिएगा. अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें कि आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, अगर हम सेल फोन्स की बात करें, अगर हम सेल फोन्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ अ स्मार्टफोन? फॉर कॉलिंग, राइट? आप कॉल करते हैं इससे, लेकिन कॉल आप कैसे करते हैं? यू शुड हैव द नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, और वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? वो भी आपका एक डेटा है. उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप ईमेल्स यूज करते हैं. तो आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके अपनी ही लाइफ देखिए कि आप कितना ज्यादा डेटा क्रिएट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, और कितना ज्यादा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है डेटा उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं.
Do you agree with this particular point or not? Let me see agree into the chat. If you agree with this particular point, let me see agree into the chat. हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा डेटा क्रिएट कर रहे हैं, and that data needs to be structured, that data needs to be analyzed, जिससे उसमें से इंसाइट्स निकाली जा सके, उसमें से इंसाइट जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। तो इस वजह से डेटा डोमेन जो है वो आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि डेटा ग्रो कर रहा है। आप डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली लाइफ में, और उस डेटा को स्ट्रक्चर करना जरूरी है, उसको स्टोर करना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है, और उसमें से इंसाइट्स निकालना जरूरी है, उसमें से इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। इसलिए आगे आने वाले सालों में ये पर्टिकुलर जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। 2.7 मिलियन जॉब्स आर लिस्टेड इन 2020 की अगर हम बात करें, सिर्फ 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2.7 मिलियन जॉब्स इस पर्टिकुलर डोमेन में पोस्ट की गई। कितनी ज्यादा यहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन। 11.5 मिलियन न्यू जॉब्स आर कमिंग इन नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में 11.5 मिलियन जॉब्स जो है वो आगे आने वाली है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, ये जो डेटा है वो ग्लासडोर का डेटा है, एंड ग्लासडोर इज लाइक द इंडस्ट्री लीडर। तो यहां पर ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर ये जो है ये डेटा के ऊपर इनसाइट्स है। ये जो इनसाइट्स मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये डेटा से ही एक्सट्रैक्ट की हुई इनसाइट्स हैं। अगर हम इंडस्ट्री स्टैट्स की बात करें, डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री विल बी वर्थ $132.9 बिलियन बाय 2026। मॉनेटरी ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, हम करियर ग्रोथ की बात कर रहे थे। करियर ग्रोथ में हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा इसमें डिमांड है, तो करियर ग्रोथ हमें मिल सकती है। लेकिन वी आर लाइक व्हाई डू यू आर डूइंग द जॉब, आपको उसमें मॉनेटरी गेन भी चाहिए। तो मॉनेटरी गेन की अगर हम बात करें, $133 बिलियन की इंडस्ट्री है, $133 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, और 2026 तक ये पॉइंट रीच आउट होने वाला है, और उससे भी आगे आप देखेंगे कि और ज्यादा एक्सपोनेंशियली ये पर्टिकुलर डोमेन जो है वो ग्रो कर रहा है। As per market research future, data analytics will achieve a compound annual growth rate of 28.9%. 28.9%, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हर साल ये अपने आप को ग्रो कर रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो अराउंड 29% है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले सालों में आपके पास आने वाली हैं डेटा डोमेन में। एंड दिस इज द राइट टाइम to enter into this particular domain. If we'll talk about the key players, that what are the companies who are leveraging their data, कौन सी वो कंपनीज हैं जो अपने डेटा को लेवरेज कर रहे हैं in order to get the insights out of it? कौन सी वो कंपनीज हैं? If we'll talk about Google, if we'll talk about Intel, Cisco, Amazon, Samsung, Tesla, Oracle, Flex, Logitech, IBM, Hitachi, ये तो इंडस्ट्री लीडर्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा और डीप डाइव जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, इवन द स्टार्टअप्स आर आल्सो लेवरेजिंग देयर डेटा। व्हाई दे आर लेवरेजिंग देयर डेटा? बिकॉज लेवरेजिंग डेटा मींस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बिजनेस ओनली। आप अपने ही बिजनेस के बारे में और बेटर तरीके से समझ रहे हैं अपने बिजनेस को, और अगर आप अपने बिजनेस को समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसे इंप्रूव कर पाएंगे। किस तरीके की सेल्स थी, प्रॉफिट कितना जनरेट किया, कितना ज्यादा हमारा जो मटेरियल था वो खराब हुआ, एरर कितना ज्यादा आया, कितनी डिलीवरीज हम सक्सेसफुल कर पाए, कितनी डिलीवरीज हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए, कस्टमर का रिटेंशन क्या है, ये क्या है, ये हमारी बिजनेस इनसाइट्स हैं। और ये हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? ये हम जनरेट कर सकते हैं जब हम अपने डेटा को लेवरेज करें। उस डेटा में से हम ये इनसाइट्स निकाल सकते हैं। अगर हम इनसाइट सही तरीके से निकालेंगे तो हम अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से समझेंगे, और अपने बिजनेस को, व्हेन आई एम सेइंग अपने बिजनेस को, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर या फिर आपका स्टार्टअप होना चाहिए। आप एक कंपनी में काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप खुद की कंपनी पर भी ये सारी चीजें, ये जो मेथड्स हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप डेटा लेवरेज करते हैं, when you are leveraging the data, इसका मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के बारे में और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। Do you agree with this particular point or not? Let me see in the chat. अगर आप डेटा को लेवरेज कर रहे हैं तो आप बिजनेस के बारे में और बेटर तरीके से समझ रहे हैं। Do you agree with this particular point or not? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि मैं यहां पर आपको कुछ बोल के चला जाऊंगा। दिस इज नॉट लाइक दैट। आई एम गोइंग टू बी कम्युनिकेटिंग विद यू। तो आपके आंसर्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आंसर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और बेटर तरीके से इस डोमेन के बारे में समझा पाऊंगा। ऑलराइट, सो बी एक्टिव इनटू द चैट। आई एम गोइंग टू आस्क यू many questions in this particular workshop. All right, so please be active into the chat, and I'm going to like interact with you on every point. So let's just move on.
हमने यहाँ पर किसकी बात की, हमने स्टेट्स की बात करी, हमने यहाँ पर डिमांड की बात करी। अब हम यहाँ पर इंडस्ट्री पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री पेनिट्रेशन में क्या है, अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो डेटा को लेवरेज कर रही है, लेकिन किस तरीके से लेवरेज कर रहे हैं उसको हम देखेंगे, डीप डाउन जाएंगे उसमें, और वहां पर एग्जांपल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि किस तरीके से ये कंपनीज अपनी डेटा को लेवरेज कर रही हैं, और वहां पर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज अपनी डेटा को लेवरेज कर रही हैं और वहां पर इनसाइट्स निकाल के अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं? Are you excited about that? Okay, great. My voice is perfect, right? My voice is perfect? Okay, great. Let's just move on. Let's just move on. टेक्नोलॉजी में किस तरीके से यहां पर डेटा को लेवरेज किया जाता है? How many of you uses e-commerce platform? आप में से कितने लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? आप में से कितने लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? सभी करते हैं, राइट? आप सभी ने किया है। ई कॉमर्स में जब आप जाते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और लेट्स सपोज कि आप एक टेकी काइंड ऑफ पर्सन है, आपको गैजेट्स को वहां पर खरीदना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ई कॉमर्स साइट पर गए और आपने स्मार्टफोन्स देखे, ठीक है? कितने % चांसेस हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको सेम तरीके की, यानी कि स्मार्टफोन्स और ज्यादा सजेस्ट करेगा अमेजॉन? कितने ज्यादा चांसेस हैं? मैं फिर से आपको सिनेरियो बता देता हूं। आप अमेजॉन के ऊपर गए, आप एक टेकी काइंड ऑफ पर्सन है, वहां पर आपने कुछ स्मार्टफोन्स को वहां पर देखा, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर्टिकुलर साइट पर जाते हैं, किसी भी ई कॉमर्स साइट पर, तो वहां पर वैसे ही प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए जाएं, इसके कितने % चांसेस हैं? 100% चांसेस है, राइट? तो यहां पर फॉर मेकिंग द बेटर डिसीजंस, जस्ट अ सेकंड, या बेटर डिसीजंस को बनाने के लिए यहां पर टेक्नोलॉजी में डेटा को बहुत ज्यादा लेवरेज किया जाता है। और ज्यादा हम डीप में यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा हम ये समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर डेटा को लेवरेज किया जा रहा है। ऑप्टिमाइजिंग द ऑपरेशंस, अलग अलग तरीके से यहां पर ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब थोड़ा सा फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग हो सकता है आप में से कितने लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं? आप में से कितने लोग यहां पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं? लेट मी सी इनटू द चैट। आप में से कितने लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं? यहां पर काफी लोग हैं, राइट? काफी लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। सीए हैं हमारे पास, और बैंकिंग से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, आई एम ओपनिंग द चैट फॉर एवरीवन, राइट? आई हैव ओपन द चैट फॉर एवरीवन। यू गाइस कैन ड्रॉप योर डोमेन। आप किस डोमेन से हैं आप ये ड्रॉप कर सकते हैं इनटू द चैट, ऑलराइट? आई हैव ओपन द चैट फॉर एवरीवन। टेक्निकल, सीएस, रिटेल, mathematics, commerce, okay, MBA, aviation, that's great, HR, healthcare, okay, तो हमें बहुत सारे डोमेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। That's great, that's great. Let's move on. तो यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट बी फोकस, और थोड़ा सा अपना आउटपुट भी आप मुझको दें, जिससे मैं और बेटर तरीके से आपको यहाँ पर समझा सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं, आप में से कई लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा। शार्क टैंक इंडिया में एक शार्क थे जिनका नाम था अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर की एक कंपनी थी, मैं कह रहा हूं कंपनी थी क्योंकि कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉय थे, और कंपनी थी, उनकी कंपनी का क्या नाम था? अश्नीर ग्रोवर की कंपनी का क्या नाम था? आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनटेक कंपनी, भारत पे, राइट? भारत पे। लेकिन भारत पे से उन्हें किक आउट कर दिया गया। भारत पे से उन्हें किक आउट क्यों कर दिया गया? क्योंकि भारत पे ने अपनी कंपनी का ऑडिट करवाया, और जब उन्होंने अपनी कंपनी का ऑडिट करवाया, उन्होंने पता लगाया कि किस तरीके से फंड्स कंपनी के अंदर आ रहे हैं और कहां पर उन्हें डाइल्यूट किया जा रहा है। क्या वो वर्कफोर्स के ऊपर लग रहे हैं? क्या वो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने के लिए लग रहे हैं? टेक्नोलॉजी में लगाए जा रहे हैं? या फिर जो वेंडर्स हैं वो कौन से हैं जहां पर कैश जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है? और जब ये पूरा वहां पर किया गया, जब सारी चीजें वहां पर पता लगाई गई, तो उन्हें ये पता लगा कि भारत पे के अंदर most of the money is being diluted or diverted to unknown sources. ऐसे sources को divert किया जा रहा था, ऐसे sources को divert किया जा रहा था जो कि I have disabled the chat for everyone. All right, so
जिससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर भारत पे का आपको एग्जांपल लिया। भारत पे में क्या हुआ कि उस कंपनी का ऑडिट करवाया गया। जब ऑडिट करवाया गया तो उन्हें पता चला कि मोस्ट ऑफ द कैश जो है, मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो ऐसे सोर्सेज को डाइवर्ट किया गया, डाइल्यूट किया गया जो कि अननोन सोर्सेज थे, जो कि लेजिट सोर्सेज नहीं थे। और जब और ज्यादा उसके बारे में पता लगाने की उन्होंने कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं जो वो सोर्सेज हैं वो रिलेटेड हैं टू द वाइफ ऑफ अश्नीर ग्रोवर। और इससे क्या हुआ, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग से डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की, जिससे उन्हें पता लगा कि हाँ, ज्यादा कैश जो है वो अननोन सोर्सेज को डाइवर्ट किया गया है। और साथ में उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड पता चला। ठीक है, उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पता लगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्टिंग से आप फ्रॉड्स डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, एल्गो ट्रेडिंग में किस तरीके से डेटा को लेवरेज किया जा सकता है। अगर हम ये बात करें कि आप में से कितने लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कैन यू गाइस प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड्स इनटू द स्टॉक मार्केट। आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। अब में से कई लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, राइट। अब ट्रेडिंग में एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से हो सकती है, लेवरेजिंग द डेटा, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक कहावत होती है दैट मार्केट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मार्केट हमेशा खुद को रिपीट करता है। और इसी कहावत के ऊपर, इसी एक रूल के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट, हम यहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। अब यहां पर देखिए पूरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है कि पिछले जो रेजिस्टेंस हुआ था, मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया और उसका एक पॉइंट पे जाके उससे ऊपर वो नहीं गया, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट भी आपको यहाँ पर बता दिया। एक पर्टिकुलर स्टॉक है एमआरएफ का स्टॉक, हम मान लेते हैं एमआरएफ का जो स्टॉक है वो कभी 750 से ऊपर नहीं गया है। ठीक है, कभी भी 750 से वो ऊपर नहीं गया है, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, वहां पर उसे रोक दिया गया है। तो हम जब नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे और 740 पे अगर वो चल रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 750 मेरा टारगेट है, वहां पर जाके मैं सेल कर दूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। और उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें कि जब भी वो स्टॉक गिरता है तो वो 700 से कभी नीचे नहीं गया। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ, कभी की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 बार ऐसा हुआ कि जब भी वो स्टॉक गिरता है तो 650 या फिर 600 पे वो उससे नीचे नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और इसके बेसिस पे हम यहां पर जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। एमआरएफ 80,000 का, वो मुझे पता है, लेकिन 80,000 का अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो काफी लोगों को यहां पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसे ही एक रैंडम यहां पर फिगर लिया है। ठीक है, चलिए और आगे इसमें बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मैं ये कहूं कि आज मेरे पास 15 लाख रुपए हैं और मैं एमआरएफ के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल के बाद क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा या फिर लॉस में रहूंगा। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी दैट। क्या आप में से लोग बता सकते हैं, इज दैट पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नहीं, आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं मैं प्रॉफिट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पॉसिबल है बताना। मे बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मे बी नॉट। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर अगर ये बात सच है दैट मार्केट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ और आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से आप चलना चाहते हैं, तो मैं ये तो पता लगा सकता हूं कि वो स्ट्रेटेजी मेरी काम करेगी कि नहीं करेगी। वो मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके ऊपर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूंगा। और किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूंगा, मान लीजिए मैंने क्या किया, एमआरएफ के 10 साल का डेटा मैंने ले लिया, उस 10 साल के डेटा के ऊपर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना शुरू किया। यानी कि मैंने 10 साल पहले अगर 15 लाख रुपए लगाए होते तो आज मैं किस सिचुएशन पर खड़ा होता, ये मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी को वहां पर फॉलो करूंगा। ठीक है, ये मैंने पता लगाने की कोशिश की और ये मुझे पता लग गया। अब इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर मैं आगे भी सेम स्ट्रेटेजी लेकर चलूंगा और मार्केट खुद को रिपीट करता है, मार्केट एक सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से चलता है, तो आगे आने वाले लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, आगे आने वाले 10 साल में भी मैं प्रॉफिट में रह सकता हूं। तो कुछ इस तरीके से हम जो है एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं डेटा के ऊपर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर मार्केटिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें, मार्केट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, यू कैन एनालाइज विद द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप यूज कर सकते हैं वहां पर मूविंग एवरेजेस का, आप यूज कर सकते हैं वहां पर बॉलिंजर बैंड्स का। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज करके आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की, जो बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मार्केटिंग किस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। कंज्यूमर टारगेटिंग, मान लीजिए अगर मेरे पास आज एक नया प्रोडक्ट है, लेट्स टॉक अबाउट
टी, ठीक है, मेरा नाम शिवा है और मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, शिवा टी, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या सही रहेगी? पहले मुझे मार्केट को एनालाइज करना चाहिए और टारगेटेड ऑडियंस को ही अपना प्रोडक्ट वहां पर रीच आउट करना चाहिए, उन्हें रीच आउट करना चाहिए, या फिर रैंडमली मैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने लग जाऊं? व्हाट डू यू थिंक, मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी? ऑल इंडिया और टारगेटेड ऑडियंस, ऑल इंडिया और टारगेटेड ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक? टारगेटेड ऑडियंस और ऑल इंडिया? टारगेटेड ऑडियंस क्यों होनी चाहिए? ज्यादातर लोग कह रहे हैं टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि वहां पर मुझे कन्वर्जन बेटर मिलेगा, राइट? कन्वर्जन बेटर मिलेगा मुझे, राइट? ओके, चलिए इसी पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। टाटा टी ने एक नया प्रोडक्ट, एक नया फ्लेवर लॉन्च करने का सोचा। टाटा टी ने कहा कि हमारे पास एक नया फ्लेवर लाया है और उसका नाम है कश्मीरी कावा। कश्मीर की जो फेमस चाय है जिसे कहते हैं कावा, वो उन्होंने लॉन्च करने का सोचा और उन्होंने उसका एक प्रीमिक्स बनाया। अब एक और आपसे मेरी क्वेरी है, टाटा का जो पूरी इंडस्ट्री है, क्या उनकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है कि एक महीने के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर तक पहुंचा सकते हैं? यस और नो? यस, दैट इज करेक्ट। ओके, तो मैं इसे भी यहां पर एज अ अजम्पशन लेकर चलता हूं, ठीक है, एज अ अजम्पशन लेकर मैं इस पॉइंट को भी लेकर यहां पर चलता हूं। अब देखिए, मैंने कहा कि टाटा टी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज नोन एज टाटा टी ऑफ कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा उन्होंने लॉन्च किया और उसे हर पर्टिकुलर स्टेट में 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने डाइवर्ट की। 1 लाख क्वांटिटी हर स्टेट में जब उन्होंने डाइवर्ट की तो एक महीने के बाद उन्होंने सेल्स की रिपोर्ट अपने पास मंगाई। थोड़ा सा आप सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस स्टडी यहां पर हम कर रहे हैं और समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से डेटा को यहां पर लेवरेज किया जा रहा है। केस स्टडीज में क्या है कि एक कंपनी है जिसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस लॉन्चिंग में उन्होंने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट रन किया। पायलट प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया कि 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने हर पर्टिकुलर स्टेट में वहां पर सर्कुलेट की और एक महीने के बाद सेल्स की रिपोर्ट उन्होंने मंगाई। सेल्स की रिपोर्ट जब उनके पास आई तो हर पर्टिकुलर स्टेट की रिपोर्ट उन्होंने एनालाइज की, उनको कंपेयर किया और एक पर्टिकुलर फाइनल पॉइंट पर वो पहुंचे। और वो पॉइंट्स क्या थे? that Kashmiri Kawa is doing great in the north states. नॉर्थ स्टेट हिमाचल हम कह सकते हैं, हम पंजाब कह सकते हैं, हम राजस्थान भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर गुजरात भी कह सकते हैं, हम उत्तराखंड भी कह सकते हैं और साथ में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। My voice is not clear, guys? My voice is clear, right? Just a second. Let me just make it more clear. Just a second. Is it better now? Is it better now? Okay, great. तो जिन्हें भी मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैन हियर मी क्लियरली। ऑलराइट, प्लीज डू इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर हम केस स्टडी की बात कर रहे थे। टाटा टी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट का नाम था कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा हर पर्टिकुलर स्टेट में सर्कुलेट किया गया और 1 लाख क्वांटिटी उसकी सर्कुलेट की गई। सर्कुलेट करने के बाद 1 मंथ के बाद उन्होंने सेल्स की रिपोर्ट अपने पास मंगाई और उसको एनालाइज किया और उसमें से कुछ इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट की। इंसाइट्स क्या थी? इंसाइट्स ये थी, पहली इंसाइट ये थी कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा वहां पर रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जो साउथ के स्टेट हैं वहां पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां के लोग जो है वो कॉफी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू टी। ठीक है, ये हमें पता लगा। गोवा के अंदर बिल्कुल भी अच्छा वहां पर रिस्पांस नहीं है। टॉकिंग अबाउट द टी, हिल स्टेशन में कमाल का रिस्पांस है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें वहां पर भी मॉडरेट रिस्पांस है। अब जब टाटा टी के पास ये पर्टिकुलर डेटा आ चुका है, ये इनसाइट्स आ चुकी हैं, तो अब टाटा टी क्या करेगा कि जो टारगेटेड स्टेट्स हैं वहां पर और ज्यादा अच्छे तरीके से अपना सप्लाई चेन को स्ट्रांग करेगा, अपने मार्केट को स्ट्रांग करेगा और जहां पर अच्छा नहीं हुआ है वहां पर या तो वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ओके, तो आपको क्या ये बेटर लगा? ये एग्जांपल आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे कंज्यूमर टारगेटिंग और डेटा के बारे में समझ में आया? यस और नो? क्या आपको इससे डेटा का यूज और कंज्यूमर टारगेटिंग में किस तरीके से डेटा यूज हो रहा है ये आपको समझ में आया, राइट? ऑलराइट, लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न। अगर आप कंज्यूमर के
अगर आप कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप उसे कन्वर्ट करने में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। अगर आप कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को समझ लेते हैं, अगर मुझे पता है कि आप में से कितने लोग कब मिठाई खरीदने वाले हैं, अगर आप इसको एकदम लेमैन में समझने की कोशिश करें, घेवर मिठाई आपको पता है, आप लोगों को घेवर मिठाई पता है, तो वो अवेलेबल होती है मार्केट में। मार्केट में वो कब अवेलेबल होती है? सीजनल है, होली पे घेवर की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आप रक्षाबंधन पे, राइट, उत्तर प्रदेश में मैं हूं और वहां पर ये बहुत ज्यादा एक फेमस स्वीट है, डेजर्ट है। चलिए आपने सीजनल डेजर्ट के बारे में तो सुना होगा, सीजनल मिठाई के बारे में तो सुना होगा, राइट। हाँ, तो वहां पर क्या है, सीजनल क्यों होता है वो? जैसे घेवर जो है वो रक्षाबंधन पर क्यों ही मिलता है? क्योंकि वहां पर एक बाइंग पैटर्न है, उन्हें पता है कि रक्षाबंधन पर ही लोग उसे खरीदने वाले हैं और वहां पर अकॉर्डिंग टू द डिमांड वहां पर सप्लाई की जा रही है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? जिस तरीके से होली पर गुजिया होती है, दिवाली पर क्या होता है, लड्डू होते हैं अलग अलग तरीके के। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? किस तरीके से एक बाइंग पैटर्न है और बाइंग पैटर्न को वहां पर ब्रेक किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो क्रिएट हो रही है वहां पर सप्लाई किया जा रहा है, राइट। अब ये तो हमने बहुत छोटे लेवल पे देख लिया, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये किस तरीके से क्रिएट होता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बड़ी सेल्स हमेशा दिवाली पर क्यों लगती हैं? आपने कभी सोचा है? बीबीडी हो गया और ग्रेट इंडियन सेल हो गया अमेजोन का, ये बड़ी जो सेल्स हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ दिवाली पर ही क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा ही? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है। अब इसी में मैं कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूं, ये थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, ऑलराइट। अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न। अब यहां पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलने वाला हूं, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो एग्री लिखिएगा इनटू द चैट। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉल्स इन द मिडिल क्लास स्लैब, इज दैट ट्रू और नॉट? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉल्स in the middle class slab, all right, and again most of the middle class people, I'm not saying all of the middle class people, most of the middle class people goes into the market and purchases the new products only on the festive season, because they know that on the festive season there will be sale, there will be different kind of bonuses, offers, तो वहां पर बचत करने के लिए वो फेस्टिव सीजन में जाते हैं। और क्योंकि मार्केट को भी पता होता है कि ज्यादा लोग आने वाले हैं तो वहां पर वो भी सेल इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये क्या है? एक बाइंग पैटर्न है। उस बाइंग पैटर्न को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड क्रिएट हो रहा है, उस डिमांड में वहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है। ओके, तो बाइंग पैटर्न को अगर आपने ब्रेक कर लिया तो आप एक बेटर बिजनेस वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? लेट मी सी इनटू द चैट, राइट और रॉन्ग? Okay. All right. So how's the workshop going till now? आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं? Is there anything I need to improve? It's going good, right? और अभी देखिए, आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल भी अभी करेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि डेटा साइंस डोमेन काम किस तरीके से करता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो आपको मैं अगर यहाँ पर बता दूं कि नल वैल्यूज इस तरीके से आप ड्रॉप कर दीजिए, इस तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर लीजिए, तो वो किसी काम का नहीं है आपके, राइट। हम पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने डिमांड के बारे में बात की, अब हम इंडस्ट्री पेनिट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम डेटा साइंस डोमेन को सोचने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करेंगे। ओके, और प्रैक्टिकल के बाद हम यहाँ पर करियर के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली टॉप स्टेप्स पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो पाएगी। ओके, सो आई शुड कंटिन्यू इनटू द सेम पेज, राइट? ओके, ग्रेट। तो यहां पर हमने मार्केटिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिटेल की। रिटेल में डिस्क्रिप्टिव सेल्स एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव सेल्स एनालिसिस क्या होता है? सेल्स को अगर हटा दिए तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एक बहुत सारे तरीके की डेटा एनालिसिस होती है, उसमें से एक एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपका क्या बताता है? ये बताता है कि क्या हुआ,
जिस तरीके से हमने यहाँ पर कंज्यूमर टारगेटिंग की बात की, मैंने कहा कि टाटा ने 1 महीने के बाद अपनी सेल्स रिपोर्ट को मंगाया। सेल्स रिपोर्ट जो कि हो चुकी है, सेल तो हो चुकी है, राइट। उस डेटा में क्या होगा कि किस तरीके से सेल हुई थी, राइट। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसमें से इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बेसिक से आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 लोग हैं, एक है उनके मालिक जेठालाल और एक है उसमें डेटा एनालिस्ट जिनका नाम है नट्टू काका। ठीक है, अब यहां पर नट्टू काका किस तरीके से सेल्स एनालिसिस करते हैं ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट उन्हें करना है, ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना है, तो किस तरीके से वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब नट्टू काका ने 10 साल के डेटा को एनालाइज किया तो उसमें से उन्होंने कुछ इंसाइट्स निकाले। इंसाइट ये थी कि हर साल उनका जो बिजनेस है, हर साल जो डिमांड है उनकी, वो 10 to 15% ग्रो करती है। अब आपसे नट्टू काका पूछने वाले हैं कि इन्वेंट्री में कितना माल रखना है। ओके, ठीक है, इन्वेंट्री में कितना माल रखना है ये वो आपसे पूछने वाले हैं। तो बताइए, अगर पिछले साल, अगर लास्ट ईयर 100 रेफ्रिजरेटर सेल हुए थे और ग्रोथ रेट 10 to 15% है, तो इन्वेंट्री में कितने रेफ्रिजरेटर उन्हें रखने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 115, 125, 20, 30? ओके, 110 और 115 जो कह रहे हैं उन्हें, उनका तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट 10 to 15% है। लेकिन जो 120 से ज्यादा कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, वो अपना आंसर यहां पर डाल दें, ठीक है। 120 या फिर उससे ज्यादा जो भी फिगर आप यहां पर बता रहे हैं, तो आप ये जरूर बता दें कि आप ये फिगर क्यों कह रहे हैं, आपका मोटिव क्या है इसके पीछे। They are optimistic. That can be possibility, right? Stock, compound interest, might get more sale, yes. Reserve, suppose more sale, थोड़ा सा ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। बफर स्टॉक, राइट, वी कैन से बफर स्टॉक। ओके, ठीक है, एक तो हो गया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के हमने 5 और मान लिए तो 120 हो गए, ठीक है। 10 to 15% पे 115 हो गए। बफर स्टॉक हमने 5 और मान लिया, 120 हो गए। 125 क्यों कह रहे हैं आप? व्हाट डू यू थिंक? एरर रेट मान के चल लेते हैं, हो सकता है 5 रेफ्रिजरेटर आपके काम ही नहीं किए, तो वहां पर आप ये थोड़ी बोलेंगे कस्टमर से कि यहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, आप रिप्लेस करके उसे तुरंत देंगे, राइट। तो प्रोडक्ट फेलियर के नाम पे हम 5% और रख रहे हैं, तो 125 और 130 तक हम रेफ्रिजरेटर अपनी इन्वेंट्री में रख सकते हैं। ओके, डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस और नो? 125 to 130, राइट। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव सेल्स एनालिसिस किया गया, उसके बेसिस पे यहां पर ग्रोथ रेट पता लगाया गया और ग्रोथ रेट के बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बेटर तरीके से किया गया अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो क्रिएट होने वाली है। सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। कस्टमर आपके पास आया, आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, आप उससे कहते हैं अभी तो नहीं है, कल आ जाइएगा, क्या वो आपके पास आएगा? क्या वो आपके पास आएगा या फिर वो कंपटीशन के पास जाएगा? वो कंपटीशन के पास जाएगा, राइट। तो यहां पर सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। कंज्यूमर माइंडसेट को आपने समझा, आपने अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न से, आपने बाइंग पैटर्न के हिसाब से यहां पर कंज्यूमर के माइंडसेट को भी समझने की कोशिश की। सप्लाई चेन किस तरीके से काम करती है, सप्लाई चेन की अगर हम बात करें, देखिए कोविड में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ था कि सप्लाई चेन पूरी ठप पड़ गई थी। हम बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम? क्या इंपोर्ट करते हैं हम? चाइना से हम क्या इंपोर्ट करते हैं? मोबाइल इंपोर्ट करते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं, हम टॉयज इंपोर्ट करते हैं, हम पैरासीटामोल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। और सप्लाई चेन ठप होने की वजह से वहां पर ये जो पूरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो भी बिल्कुल बंद पड़ गया। और उसके बाद सुमित राव, रिकॉर्डेड सेशन है ये, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपको यहां पर मुझे लगता है कि कैपेसिटी प्लानिंग और डिमांड फॉरकास्टिंग भी समझ में आ गया होगा, यस और नो इनटू द चैट।
Should we just move on? Should we just move on to the next task? Yes or no? Okay. All right. So before moving, how many of you wants to connect with me over LinkedIn? How many of you wants to connect with me over LinkedIn? Because I post every day. मैं हर दिन कुछ अलग पोस्ट करता हूं जिससे आप डेटा डोमेन में अपना करियर बना सकते हैं. How many of you wants to connect with me over LinkedIn? All right. So let me just share my LinkedIn profile with you, right? Just a second. I'm sharing my LinkedIn profile. So in case you have any query, you can reach out to me on LinkedIn. Okay. All right. Should we just move on? Should we just move on now? All right. तो आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन है that what is data science? How many of you have the same question? आप में से कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है that what is data science? Data science है क्या? आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ लिए, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख ली, लेकिन फिर भी आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डेटा साइंस है क्या. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट? Who wants to understand that what is data science? All right. तो डेटा साइंस की अगर हम बात करें, अब देखिए यहां पर मैं डेफिनेशन तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं सिर्फ डेफिनेशन बता के आपको ऐसा नहीं कर दूंगा कि लेट इट गो. आपको मैं पूरी डेफिनेशन का लेयर बाय लेयर प्रोसेस समझाने वाला हूं कि डेटा साइंस डोमेन काम किस तरीके से करता है. ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है दैट डेटा साइंस इज द डोमेन ऑफ स्टडी दैट डील्स विद वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा. वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील करता है. वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा, कितना डेटा हो सकता है? What do you think? आपके माइंड में ये क्या अराइज हो रहा है? वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा, कितना डेटा हो सकता है? What do you think? वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा से आपको क्या लग रहा है कि कितना डेटा हो सकता है? इन टीवीज, मिलियंस, मैनी टीवी कैन नॉट बी इवन काउंट, राइट? इनफाइनाइट, ट्रिलियंस में, मिलियंस में, राइट? ठीक है, तो इतने बड़े डेटा के ऊपर भी आप डेटा साइंस का जो मेथड्स हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर हम जो है अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. अब इससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो सेकंड पॉइंट क्या है? यूजिंग मॉडल टूल्स एंड टेक्निक्स. आप में से कितने लोग एक्सेल यूज करते हैं? आप में से कितने लोग एक्सेल यूज करते हैं? काफी लोग करते हैं. ओके, आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपने 1 GB की फाइल ओपन की और उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. वो क्या 1 GB की फाइल ओपन करने के बाद आप जब ऑपरेशन करते हैं, क्या सीमलेस एक्सपीरियंस आप उसमें देखेंगे या फिर एक्सेल वहां पर लैग करेगा या फिर काम ही ना करे? हो सकता है, राइट? क्रैश हो सकता है या फिर लैग कर सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम एक्सेल जैसे टूल्स में यूज नहीं कर सकते. तो यहां पर हमें बेटर टूल्स की जरूरत है और मॉडर्न टूल्स की जरूरत है. अब मॉडर्न टूल्स हमारे क्या होते हैं? मॉडर्न टूल्स लाइक पाइथन, मॉडर्न टूल्स लाइक एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई, इस तरीके के जो टूल्स हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं. ओके, उनके ऊपर हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. तो यहां पर हमें 2 पॉइंट समझ में आ गए. पहला पॉइंट ये है कि वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम मॉडर्न टूल्स को यूज करते हैं. मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स टू फाइंड अनसीन पैटर्न्स, derive meaningful information and make business decision. अनसीन पैटर्न्स को निकालना, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उससे बिजनेस डिसीजंस लेना. जब आपको अगर नट्टू काका के 10 साल का डेटा दिखा दिया जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको उसमें से पैटर्न्स निकालने हैं. ग्रोथ रेट आप कैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि उसमें से आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपने क्या निकाली कि 10 to 15% आपका ग्रोथ रेट है. और उससे आपने बिजनेस डिसीजन कैसे लिया कि आप उस डिमांड जो आपके पास जनरेट होने वाली है उसके लिए आप तैयार हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल टिल नाउ? इज दैट क्लियर? ऑलराइट. Data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. अब ये 2 हैवी वर्ड्स हमारे पास आ गए. पहला हैवी वर्ड है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, दूसरा हैवी वर्ड है प्रिडिक्टिव मॉडल्स. ये 2 हैवी वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं. ये किस तरीके से काम करते हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. मशीन लर्निंग फिर समझेंगे. एल्गोरिथम क्या होता है? आई हैव दिस ब्लैक कॉफी. ओके, आप मुझे 3 स्टेप्स में बताइए दैट हाउ टू मेक
ब्लैक कॉफी? 3 स्टेप में जल्दी से मुझे बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 3 स्टेप्स में बताइए दैट हाउ टू मेक ब्लैक कॉफी, बताइए। एक साथ लिख लीजिए क्योंकि जैसे ही आप दूसरा पॉइंट डालेंगे वो निकल चुका होगा। बॉइल्ड वाटर, कॉफी डालिए उसमें और उसके बाद ड्रिंक कीजिए, ठीक है। हॉट वाटर प्लस कॉफी और उसके बाद उसे मिक्स करना है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। तो ये आपने क्या बताया, ये क्या था? टास्क टू मेक अ कॉफी, राइट? टास्क टू मेक अ कॉफी, यस। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क। तो दिस इज एल्गोरिदम टू मेक कॉफी। इज दैट क्लियर टू ऑल? एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क। तो यहां पर अगर टेक्निकल भाषा में इसे कहा जाए तो ये हम क्या बात कर रहे हैं? हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द एल्गोरिदम टू मेक कॉफी। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट इंटरेस्टिंग? आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कि हम जो चीजें इतने ज्यादा हाइप्ड अप सुनते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी, लेकिन जब हम उसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा वो आसान हो जाती है, राइट? क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस, ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। तो यहां पर हमने एल्गोरिदम समझ लिया, अब मशीन लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज होता है, ट्रांसफर होता है, री इन्फोर्समेंट होता है। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं, ये अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे, मशीन लर्निंग काम किस तरीके से करता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, एक मशीन काम किस तरीके से करती है। आप उसमें इनपुट देते हैं, आप बताते हैं किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होना है और उसके बाद आपके पास एक आउटपुट आता है। इसी तरीके से टिपिकली मशीन्स काम करती हैं, राइट? इसी तरीके से टिपिकली कंप्यूटर्स काम करते हैं। इनपुट दिया आपने, आपने बताया ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है और उससे आपको आउटपुट मिला। दिस इज द टिपिकल प्रोसेस, यस और नो? दिस इज द टिपिकल प्रोसेस, यस? ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको सैंडविच बनाना था। सैंडविच के लिए आपने ब्रेड लाया, आपने वेजिटेबल्स लाए, आपने कोई स्पेशल मतलब चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने किसी तरीके सॉस, राइट, वो लाया आप, और ये तीनों चीजें आपने दी। उसके बाद आपने प्रोसेस बताया किस तरीके से आपको ब्रेड रखना है, फिर सॉस लगाना है, बटर लगाना है, और उसके बाद आपको वेजिटेबल्स रखना है, और फिर उसको सैंडविच आप कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द टिपिकल प्रोसेस। और उसके बाद आपको आउटपुट मिला, हो सकता है उसका टेस्ट डिफरेंट हो, लेकिन आपके पास इनपुट्स हैं और आपके पास एक फेमस जो आपके घर के आसपास सैंडविच बनाते थे उनकी आपके पास सैंडविच है। आप क्या करेंगे? मशीन को दोनों चीजें देंगे। आपने इनपुट दिया, फाइनल आउटपुट दिया, और आप मशीन से पूछ रहे हैं इस इनपुट से ये जो सारे हमारे पास सामग्री है, अगर हिंदी में बात करें सामग्री और विधि, राइट, यही तो होता है। काफी कम मेरे पास रिस्पॉन्सेज आती है, विधि होती है, फिर हमारे पास डिश होती है, राइट राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं चलिए ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं तो यहां पर हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इनपुट्स दे रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। हम इंग्लिश दे रहे हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, ऑलराइट, लेट्स गेट बैक, चलिए। ओके, तो हम इनपुट्स दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रोसेस बता रहे हैं और उससे हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, और मशीन से पूछते हैं कि इस इनपुट से ये आउटपुट कैसे रीच आउट करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? मशीन से आप पता लगा रहे हैं। मशीन क्या करता है, अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस करता है और फिर टेस्ट करता है कि ये जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आ चुका है वो हमारे पास इससे मैच करता है या नहीं करता है, टेस्टिंग डेटा से मैच करता है कि नहीं करता है। आर यू गेटिंग इट? नहीं समझा? फिर से एक और बार समझे, एक और बार समझे, शुड वी जस्ट रिपीट इट? फिर से रिपीट करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल किस तरीके से हम लें।
ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस आपके किस पे होता है? आपके पास एक्सरेज हो तो उससे ट्यूबरक्लोसिस पता लगता है, राइट? एक्सरे से पता चलता है, राइट? ओके, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ लोगों के एक्सरेज हैं, ठीक है? उससे आपने एक मशीन को ट्रेन किया। चिट्टी रोबो कैसे ट्रेन हुआ था? चिट्टी रोबो को डॉक्टर वशीकरण ने क्या किया था? बहुत सारा डेटा उसके अंदर डाला था और तभी तो वो सारी चीजें समझ पाया था, राइट? आर यू गेटिंग इट? तभी तो वो सारी चीजें समझ पाया था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक मशीन है जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा आपने इसको दे दिया। अगर हम सिर्फ एक मशीन ट्रेन कर रहे हैं जो बता सके एक एक्सरे को देख के कि वो एक्सरे ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले बहुत सारा हम एक्सरेज उसमें डालेंगे। एक्सरेज हमने उसमें डाले और वो मशीन जो है वो ट्रेन हो चुकी है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? एक टेस्टिंग डेटा आप लेंगे और फिर वो दिखाएंगे, उससे पूछेंगे मशीन से कि क्या इसको ट्यूबरक्लोसिस है, हाँ या नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये मशीन लर्निंग है। मशीन पैटर्न्स ढूंढती है, मशीन जो है खुद सीखती है। सीखने के बाद आप उससे पूछते हैं कि किस तरीके का काम वो कर रही है। नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? All right. Okay, let's talk about predictive models now. Predictive models, predict किस तरीके से कर सकते हैं चीजों को, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं और किस कंपनी का स्मार्ट वॉच यूज करते हैं? प्लीज ड्रॉप दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू द चैट। बोट, सैमसंग, एप्पल? ओके, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज्यादा इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपका डेटा स्टोर कर रही है, ये आपको पता है? यस और नो? आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपका डेटा स्टोर कर रही है, यस और नो? तो इससे वो आपके बारे में और बेटर तरीके से समझ रही है। अगर आपका हेल्थ इश्यूज है आपको, तो आपकी हार्ट रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगी, यस और नो? राइट? अगर आपके ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रही है, दैट मीन्स कि आप एक फिट पर्सन नहीं है, राइट? आपकी स्मार्ट वॉच वो डेटा कलेक्ट कर रही है। स्मार्ट वॉच अगर आपका डेटा एक इंश्योरेंस कंपनी को सेल आउट कर देती है, उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, तो इनिशियली हम कैसे जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास? कि हमारा फायदा हो। हम यही तो देखते हैं कि हमारा फायदा किस तरीके से हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस की भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम फायदे में रह सकते हैं, इसीलिए तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, यस और नो? इंश्योरेंस इसीलिए तो हम लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी को यह पता है कि आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है और अगर आपके फायदे के अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड की गई, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो अगर कंपनी को यह पता है, कंपनी किस पे चांसेस लेती है? इसी पे तो लेती है कि आप एक फिट पर्सन है। लेकिन कंपनी को पहले से पता है कि आप एक फिट पर्सन नहीं है, तो वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर यह हो सकता है कि कंपनी आपको ऐसे प्लान सजेस्ट करे जिसमें कंपनी का फायदा हो, आपका नहीं। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें प्रिडिक्ट की जा रही हैं। तो इस तरीके से आपका प्रिडिक्टिव मॉडल काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया बहुत ज्यादा कि डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं और इस तरीके से डेटा साइंस काम करता है। लेकिन डेटा साइंस की लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से काम करती है, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैप्चर द डेटा। कैप्चरिंग द डेटा मीन्स कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब हम डेटा कहां से लाएंगे? हम हो सकता है कि सर्वर से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा फ्रेंड हमें ईमेल से डेटा भेज सकता है, हो सकता है कि हम गूगल ड्राइव से डेटा ले रहे हैं, हो सकता है कि हम पेन ड्राइव से डेटा ले रहे हैं, हार्ड ड्राइव से डेटा ले रहे हैं, किसी भी तरीके से हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के बेसिस ने एक कंपनी ने बिजनेस खड़ा किया है $1 मिलियन का। एक डेटा साइंस के छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से एक कंपनी ने $1 मिलियन का एक कंपनी खड़ी कर दी है, बिजनेस खड़ा कर दिया है। कौन सी कंपनी है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जिसकी टैगलाइन ये है, क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया? कौन सी कंपनी है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी किस तरीके से $1 मिलियन का एक बिजनेस खड़ा कर दिया है। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? ये टैगलाइन किस पर्टिकुलर कंपनी की है? आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन,
ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि आपने कभी किया है कि नहीं किया, ये एक कंपनी की टैगलाइन है। तो ये किस पर्टिकुलर कंपनी की टैगलाइन है? चलिए, मुझे यहाँ पर अगोड़ा भी दिख रहा है, ओयो भी दिख रहा है, ट्रिवागो भी दिख रहा है, मेक माई ट्रिप भी दिख रहा है, एक्सपीडिया भी दिख रहा है। अगर आप अपने पर्टिकुलर आंसर के बारे में 100% श्योर हैं तो उस कंपनी का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए 100%। अगर आप आंसर के बारे में 100% श्योर हैं तो आंसर लिखिए, उसके आगे आप लिख दीजिए 100%। MMT 100%, दैट इज नॉट करेक्ट। ओयो 100%, अगेन दैट इज नॉट करेक्ट। Booking.com 100%, again not correct. Expedia not correct. Agoda not correct. Make my trip not correct. BNB not correct. So the name of the company is Trivago. Trivago.com. ये एक एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हिट हुआ था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। टीवी पर आपने कई बार देखा होगा, एक पर्सन है जो आते हैं और कहते हैं आपसे कि आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है, और उसके बाद वो आपका पूरा प्रोसेस वो बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो पर्सन है, अगर आपने वो पर्सन देखे होंगे, ही इज नॉट अ एक्टर, वो ट्रिवागो के इंडिया हेड हैं और उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में खुद काम किया जो कि बहुत ज्यादा हिट हुआ। ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि ट्रिवागो काम किस तरीके से करता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली के अंदर गए, आप दिल्ली के अंदर ताज होटल में रहना चाहते हैं फॉर 2 days and 2 nights। तो आप गूगल के ऊपर गए और वहां पर आपने सर्च किया सिंगल रूम फॉर 2 days 2 nights इन ताज होटल। तो आपको बहुत सारे वहां पर वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ताज होटल की खुद की भी वेबसाइट होगी, वहां उन्होंने ओयो के ऊपर भी लिस्ट किया होगा, मेक माई ट्रिप पर भी किया होगा, हो सकता है एयरबीएनबी पर किया हो, सब पर उन्होंने लिस्ट किया है। और जब आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप अलग अलग प्राइजेस देखते हैं, किसी पे 5,000 लिखा हुआ है, किसी पे 6,000 लिखा हुआ है, किसी पे 7,000 लिखा हुआ है। तो वहां पर अलग अलग तरीके के कॉस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यस और नो, यस और नो, यस और नो इनटू द चैट, यस। तो इस प्रॉब्लम को ट्रिवागो ने नोटिस किया और उसको सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि हर पर्टिकुलर वेबसाइट से उन्होंने डेटा को स्क्रैप किया। डेटा स्क्रैपिंग इसे कहते हैं। डेटा को स्क्रैप जब आप करते हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, उससे अगर मैं डेटा लेता हूं तो उसे कहेंगे डेटा स्क्रैप करना। तो ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग होटल की वो वेबसाइट पे गए, वहां से उन्होंने प्राइजेस फैच किए और प्राइजेस में से जो सबसे अच्छी डील है वो वहां पर सबसे ऊपर उन्होंने दिखा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया। ओके, सॉर्ट कर दिया सारे वेबसाइट्स को। ओके, तो यहां पर क्या ये पर्टिकुलर मॉडल ज्यादा वर्क करेगा, यस और नो? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई इस पर्टिकुलर मॉडल से, यस और नो? ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। तो यहां पर इस तरीके से डेटा को स्क्रैप किया गया, उसके बाद उसे मेंटेन किया गया, उसमें डेटा को क्लीन किया गया। ओके, Siva, can you please share your screen again? It is not displaying here. आप में से किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? It is visible, right? हो सकता है कि आपने फोन से कोई सेटिंग कर रखी हो, उसकी वजह से आपको दिखाई ना दे रहे हो, वरना स्क्रीन हमारी विजिबल है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डेटा को मेंटेन किया गया, उसके बाद उसे प्रोसेस किया गया। प्रोसेस किस तरीके से किया गया? चिट्टी रोबो है, चिट्टी रोबो सिर्फ एक तरीके की लैंग्वेज को समझता है। तो वहां पर आपके पास जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से है, तो आपको डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो चिट्टी रोबो यानी कि एक एल्गोरिथम समझ सके। तो वो होता है हमारा प्रोसेसिंग। उसके बाद जो आपके पास इंसाइट्स आएंगे उनको आप एनालाइज करेंगे, इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपके फाइनल डिसीजंस हैं उनको आप कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? पीपीटी से आप कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना के कर सकते हैं, ये होता है आपका कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? शुड वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क? ओके, तो आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द सेम क्वेश्चन? ऑलराइट, ओके, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस समझेंगे और उसके बाद हम डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स ये दो डोमेन्स हैं और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या है? ये दो जॉब प्रोफाइल्स हैं।
तो यहां पर हम डोमेन्स और जॉब प्रोफाइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। पहले हम डोमेन्स की बात करते हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंस, डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस क्या है ये तो हमने समझा, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी डोमेन्स हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, सेल्स एनालिटिक्स हो गया, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, ये सब के सब जो है वो सब डोमेन्स हैं डेटा साइंस के। डेटा साइंस इज अ ह्यूज अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। डेटा एनालिस्ट एक प्रोफाइल है, डेटा एनालिटिक्स एक डोमेन है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स एक डोमेन है, जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस एक डोमेन है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एक जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट आप इसमें कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है कि डेटा साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। डेटा एनालिटिक्स इज द सब डोमेन ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट जो काम करते हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट यूटिलाइज डेटा इन डिफरेंट वेज। डेटा साइंटिस्ट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, स्टैट्स, machine learning techniques to clean, process and interpret data to extract insights from it. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डेटा साइंस में क्या हो रहा है नॉर्मली, इट इज गोइंग गुड, राइट? इट इज गोइंग गुड, राइट और रॉन्ग? क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए। तो यहां पर हम डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहे थे कि डेटा साइंटिस्ट जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डेटा साइंटिस्ट किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? डेटा साइंटिस्ट क्या है कि बहुत ज्यादा ये मैथ्स पे काम करते हैं, स्टैट्स पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक्स पे काम करते हैं टू क्लीन, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स, इसलिए ये काम करते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे डेटा साइंटिस्ट में क्या है कि ये बहुत ज्यादा, डेटा साइंटिस्ट को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, डेटा साइंटिस्ट इज लाइक शक्तिमान। वो शक्तिमान की तरह होता है, उसको सारे काम आते हैं। जो डेटा एनालिस्ट कर सकता है वो डेटा साइंटिस्ट कर सकता है, लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट कर सकता है वो डेटा एनालिस्ट नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा एडवांस रोल होता है डेटा साइंटिस्ट का। शक्तिमान आप इसे कह सकते हैं। जितने भी रोल्स हैं डेटा साइंस डोमेन के अंदर, वो सारे टास्क इसको परफॉर्म करना आता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा मैथ्स पे काम करते हैं, स्टैट्स पे काम करते हैं और मशीन लर्निंग टेक्निक्स पे काम करते हैं। यानी कि डेटा एनालिस्ट तो ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वो नई चीजों को डेवलप कर रहे हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? नई चीजों को ही डेवलप करते हैं, राइट? साइंटिस्ट क्या करते हैं? नई चीजों को ही डेवलप कर रहे हैं। तो वही डेटा साइंटिस्ट का काम है, डेटा डोमेन के अंदर नई चीजों को डेवलप करना, कोर चीजों पे काम करना और डेवलप करना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है यहां पर, ठीक है। They design advanced data modeling processes using prototype, machine learning algorithm, predictive model and custom analysis. मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्टैट्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पर मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नए अलग अलग तरीके के कस्टम मॉडल्स बिल्ड करना चाहते हैं, कस्टम एनालिसिस करना चाहते हैं, डेटा मॉडलिंग करना चाहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा हैवी रोल है। थोड़े आसान रोल की तरफ चलते हैं जो कि है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट किस तरीके से काम करता है? डेटा एनालिस्ट का सीधा सा मोटिव है कि वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना चाहता है, जिससे वो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके, जिससे बिजनेसेस को हेल्प हो सके, बिजनेसेस को हेल्प हो सके। तो यहां पर डेटा एनालिस्ट कलेक्ट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज इट, एनालाइज इट टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट पैटर्न्स। आफ्टर द एनालिसिस पार्ट इज डन, they strive to present their findings. अब यहां पर डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि पहले तो ये इनसाइट्स निकालता है। जब इनसाइट्स हो जाती हैं तो उसे प्रेजेंट करना ये चाहता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। तो यहां पर अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें, डेटा एनालिस्ट ट्रांसफॉर्म द कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स इनटू बिजनेस सेवी लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स को बिजनेस सेवी लैंग्वेज में यहां पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जिसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मेंबर दोनों समझ सकें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, तो क्या आपको अब क्लियर है कि डेटा साइंस और
डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है? इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो? यस और नो इनटू द चैट? यस और नो इनटू द चैट गाइस? सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या वो अभी हो रहा है या फिर वो पहले से भी हुआ मतलब होता आ रहा है? इज इट बीइंग यूज्ड नाउ और बिफोर? लेट मी सी इनटू द चैट। नाउ और बिफोर? नाउ और बिफोर? बिफोर, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस अभी ज्यादा क्यों यूज की जा रही है? हमने अभी क्यों इतना इसका नाम सुना है? देखिए मैं इसका आंसर देता हूं कि पहले क्या था, पहले हम बहुत ज्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट थे। ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते थे तो पहले हम बहुत ज्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट थे और इतना ज्यादा डेटा हमारे पास था भी नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब हमारे पास बिग डेटा है और अब हम जो है टेक डिपेंडेंट है। टेक डिपेंडेंट से क्या हो गया कि हम चीजें स्केल कर सकते हैं। पहले देखिए बैंक अकाउंट पहले भी हो सकते थे, ठीक है, पहले भी होते थे बैंक अकाउंट, और उसमें क्या होता था कि एक पर्सन के लिए वहां एक एम्प्लॉय उन्हें हायर करना पड़ता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एक पर्सन के लिए एक एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल एम्प्लॉय 1000 अलग एम्प्लॉयज के लिए अदर क्लाइंट्स का डेटा वो हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर स्केल हुई चीज है और प्रोसेस फास्ट हो गए क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हम अपना टाइम यहाँ पर सेव कर पा रहे हैं। ऑलराइट, इज दैट क्लियर टू ऑल? Should we just move on to the next task? All right. तो यहां पर अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। हो सकता है कि आपको डेटा एनालिटिक्स इतना ज्यादा क्लियर ना हो पाया हो, तो डेटा एनालिटिक्स को और ज्यादा हम डीप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डेटा एनालिटिक्स से डेटा को एनालाइज करने के बाद आप इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं और बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है उसको सबसे पहले आपको समझना है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल जोमेटो आपके पास आया, जोमेटो ने आपसे कहा कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है दिल्ली में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है शिमला में, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। अब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली है कि यहां पर क्या है, रेवेन्यू बेसिस पर बात की जा रही है, ग्रोथ के बेसिस पर बात की जा रही है, और यहां पर रेवेन्यू बेटर जनरेट हो रहा है इन दिल्ली, लेकिन बेटर जनरेट नहीं हो रहा है शिमला में, अगर हम बात करें जोमेटो की, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, अब उसे इन दोनों सिटीज का डेटा एनालाइज करना है। प्रॉब्लम अगर आपने सोच ली है, प्रॉब्लम अगर आपने समझ ली है, तभी तो आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि शिमला और दिल्ली की बात हो रही है। अब आप पंजाब का डेटा तो नहीं लाएंगे, आप उत्तर प्रदेश का डेटा तो नहीं लाएंगे, आप उत्तराखंड का डेटा तो नहीं लाएंगे, आप यहां पर किसका डेटा लाएंगे? शिमला और दिल्ली का डेटा लाएंगे, राइट? यस और नो? यस और नो? राइट? तो यहां पर अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप डेटा कलेक्शन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद रिलेवेंट डेटा को हमने कलेक्ट किया, रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने डेटा को क्लीन किया। जब हमारे पास एक रॉ फॉर्मेट में डेटा आता है तो उसको हमें क्लीन करना जरूरी होता है। हो सकता है उसमें अनवांटेड डेटा आ गया हो सकता है बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो, मैसी हो, अनवांटेड वैल्यू उसमें हो। तो इस तरीके का जो डेटा है उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा और एक बेटर फॉर्मेट में उसे हमें लाना पड़ेगा जिससे हम इनसाइट्स उसमें से निकाल सकें। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमने डेटा को क्लीन कर लिया, अब उसको हमने एक्सप्लोर किया और कुछ एनालिसिस करेंगे। डेटा एक्सप्लोरेशन से आप किस तरीके की चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन अ कस्टमर परचेसेस अ न्यू प्रोडक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग इट टुक टू डिलीवर द प्रोडक्ट। Amazon के ऊपर आप ऑर्डर करते हैं, Amazon तुरंत आपको बता देता है that it will take 2 or 3 days to deliver this particular product, but how? क्या लगता है आपको Amazon कैसे बता देता है कि आपके घर पर वो प्रोडक्ट पहुंचने में 3 दिन लगेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि Amazon ने भविष्य देख लिया। What do you think? What is the reason behind it? Forecasting using data। लेकिन किस तरीके से फॉरकास्टिंग हो रही है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आपकी लोकेलिटी में से, आपकी सिटी में से आप पहले पर्सन नहीं है जो Amazon पर ऑर्डर कर रहे हैं, और Amazon पहला पर्सन नहीं है जो आपको डिलीवर कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। पहले भी वो सारी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं,
तो यहाँ पर उनका डेटा स्टोर किया गया होगा, और आपकी लोकेशन से कितना टाइम लगता है वहां पर डिलीवर करने के लिए, उसका एक एवरेज निकाला गया, वही आपको शिफ्ट कर दिया गया है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, अब यहां पर क्या है, यू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द काइंड ऑफ आइटम लुक फॉर। कस्टमर किस तरीके का आइटम सर्च कर रहा है, इसमें आपको बेटर इंसाइट मिलती है। आप YouTube के ऊपर जाते हैं, YouTube पर आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉन्ग्स को सुनते हैं, हो सकता है आप रैप सॉन्ग को सुनते हो सकता है आप बादशाह या फिर किंग के नए गाने को सुनते हो सकते हैं, राइट, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको उसी तरीके की चीजें रिकमेंड की जाएंगी, सजेस्ट की जाएंगी। तो यहां पर अगर किसी प्लेटफॉर्म ने ये समझ लिया कि आप किस तरीके के आइटम्स को देखते हैं, तो वैसे ही चीजें आपको सजेस्ट की जाएंगी जिससे आप उन्हें रेवेन्यू जनरेट करके दें। ओके, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। ये तो नट्टू काका ने भी कर लिया था। नट्टू काका ने भी बता दिया था कि हमारे पास सेल्स कितने आने वाली है, प्रॉफिट कितना जनरेट होने वाला है। You can minimize order cancellation by dispatching only relevant patterns. आपको नोएडा से आगरा एक प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, एक प्रोडक्ट की आपने डिलीवरी डेट दी है 3 दिन बाद की, एक प्रोडक्ट की दी है आपने 5 दिन बाद की। आप 3 दिन बाद वाले को पहले भेजेंगे, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं पहुंचा तो वहां पर ऑर्डर कैंसिलेशन बढ़ सकता है। ओके, और आगे चलते हैं। यू विल बी एबल टू फिगर आउट द शॉर्टेस्ट रूट टू डिलीवर द प्रोडक्ट। आप गूगल मैप्स के ऊपर जाते हैं, आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, आपको आगरा से दिल्ली जाना है, आप वहां पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताया जाता है, शॉर्टेस्ट रूट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकिंग, राइट। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती हैं। जब आप इंसाइट जनरेट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, इंसाइट जनरेट करने के बाद वहां पर जो रिजल्ट्स हैं उनको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, आप पीपीटी बना सकते हैं, आप इमेजेस वगैरह से अपनी इंसाइट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल और नाउ? Is that clear to all? Yes or no into the chat? Let me see into the chat. Is that clear to all? Okay. What are the different kind of tools that you can use for data analysis? You can use Excel, you can use Python, we can use Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, we can use SQL, we can use Tableau. इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। What is the fourth step? Exploratory data analysis. वही मैंने आपको बताया था। ये जो steps मैं बता रहा था वो exploratory data analysis का क्या। अब टैब्लू के बारे में बात कर लेते हैं कि टैब्लू क्या है। बहुत ही आसान टूल है, बीआई टूल है, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। इससे आप विजुअलाइजेशन ज्यादा करते हैं। विजुअलाइजेशन ज्यादा करने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो डेटा है क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ पिक्चरल डेटा यानी कि ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इस तरीके की चीजें आप उससे क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हमारा टैब्लू करता है। डेटा विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पर ये करने की कोशिश करता है। टैब्लू इज द पावरफुल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज्ड इन द बीआई इंडस्ट्री। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट बीआई भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके के हैं ये। अब यहाँ पर आपके मन एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि टैब्लू यूज करना है या फिर पावर बीआई यूज करना है। तो ये उसी तरीके से है कि आपको कार किसकी खरीदनी है। आपका देखिए सिंपल प्रोसेस क्या है, ड्राइव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही तो प्रोसेस होता है जब आप कार परचेज करते हैं। लेकिन किस कंपनी का परचेज करना है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, राइट। तो इसी तरीके से टास्क सेम परफॉर्म होने वाला है, टैब्लू यूज कर लो या फिर पावर बीआई यूज कर लो। लेकिन कंपनी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि बस वो सर्विस प्रोवाइडर का ही काम है, बस इतनी सी बात है इसमें। टैब्लू भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर टैब्लू के अंदर क्या होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसे शेयर करते हैं। ये हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सोर्सेज, डेटा आप कहाँ से लाएंगे, जो आप काम करेंगे अभी उसका डेटा आप कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, ऑन नंबर 1 वी हैव, ओके, स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ओके, सो वी हैव Kaggle। Kaggle क्या है? Kaggle एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आई एम शेयरिंग द लिंक टू एवरीवन। So this is the link. You can sign up on Kaggle too using your Gmail ID. और Kaggle के अंदर क्या है, देखिए LinkedIn पर आपने देखा है कि प्रोफेशनल लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो Kaggle एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर डेटा रिलेटेड लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको डेटा साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी आपको मिल जाएंगे, डीप लर्निंग इंजीनियर्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डेटाबेस से भी रिलेटेड लोग मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर काम करती हैं।
अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से हम न्यूज फीड देखते हैं हर पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप में, उसी तरीके से लिंक्डइन में भी यहाँ पर न्यूज फीड का ऑप्शन है, जहां पर मैं देख सकता हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ उन्होंने किस तरीके का यहाँ पर अब कोई नई चीज प्रोड्यूस की है। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गौरव अरोरा, और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। ये तो बात हो गई हमारी होम की कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपटीशन जो कि पेड है। प्राइज मनी देखिए $100,000, $55,000, $50,000, $30,000, $30,000, $25,000, $25,000। तो इतना ज्यादा यहाँ पर प्राइज मनी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन्हें आपको जीतना पड़ेगा। जब आप जीत लेते हैं तो ये प्राइज मनी भी आपके पास आ जाता है। अगर आप जीतते भी नहीं है तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आप कॉम्पिटिशन को देख लेते हैं और उसकी वजह से आपके जो दिमाग है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। तीसरा हमारा क्या है कि हम यहाँ से डेटा सेट ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के डेटा सेट ले सकते हैं। आप मुझे बताइए कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मुझे यहाँ पर डेटा सेट सर्च करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, मेडिकल, सेल्स, रिटेल, स्टॉक मार्केट? चलिए फाइनेंस डेटा सर्च करते हैं। फाइनेंस में हमारे पास 5700 डेटा सेट्स हैं। मेडिकल देखते हैं, मेडिकल में हमारे पास अराउंड 1000 डेटा सेट्स हैं। स्विगी का डेटा देखते हैं, स्विगी के हमारे पास 22 डेटा सेट्स हैं। अगर हम ट्रैवलिंग का देखें, ट्रैवलिंग के डेटा को हम देखें तो अराउंड 1400 हमारे पास डेटा सेट्स हैं। ठीक है, तो यहां से आप डेटा सेट्स ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल की। तो आई हैव अ प्रोफाइल ऑन कैगल, यहाँ पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुड आई जस्ट शेयर द लिंक ऑफ इट, यस और नो? All right, sharing the link, just a second. So this is the link जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, just a second. ओके, उसके बाद बात करें कि हमें कौन सा डेटा सेट यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा सेट के अंदर मैं जाता हूँ, डेटा साइंस वर्कशॉप के नाम से एक डेटा सेट यहाँ पर है। डेटा साइंस वर्कशॉप के नाम से यहाँ पर एक डेटा सेट है। अब तक 18,000 लोगों ने ये डेटा सेट देखा हुआ है, बल्कि 19,000 लोगों ने ये डेटा सेट देखा हुआ है। डाउनलोड आप देखिए लगभग 5,000 डाउनलोड्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा सेट्स के हैं। तो ये डेटा सेट आपको डाउनलोड करना है। आई एम शेयरिंग द लिंक विद एवरीवन एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अगेन। मैं फिर से इसको शेयर नहीं करूंगा, ये बहुत जरूरी डेटा सेट है जो आगे आपको वर्कशॉप में कंटिन्यू करवाएगा। इसे जल्दी से जल्दी आप अकाउंट क्रिएट करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, पीपीटी के ऊपर। और यहाँ पर पहला हमारा डेटा सोर्स क्या है, कैगल है। उसके बाद और हमारे पास क्या है, अब देखिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं टू द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू बिल्ड अ रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू बिल्ड द रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट, यस और नो? अभी करना है डाउनलोड, यस अभी करना है, आपको अभी करना है डाउनलोड। तो यहां पर हम रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड वाया फोन? आप में से कितने लोगों ने फोन से ज्वाइन किया हुआ है? ऑलराइट, चलिए तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने फोन से ज्वाइन किया हुआ है, आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसके लिए एक्सेल चाहिए और वो आपका लैपटॉप में ही रन करेगा। ओके, लेकिन 5 MB की फाइल है, बिल्कुल 5 MB की फाइल है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जरूर फोकस करना है कि अगर आप ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, तो आपको यहाँ पर ये वर्कशॉप लीव नहीं करने। ओके, आपको ये वर्कशॉप लीव नहीं करनी है, बल्कि आपको समझने की कोशिश करना है। आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, यस और नो? You want to learn, right? You want to learn.
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो आप प्रोजेक्ट किस तरीके का है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर निष्ठा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास ये आए और इन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट डेटा सर्विस चाहिए, हमें कंप्लीट डेटा सर्विस चाहिए जिसमें डेटा क्वालिटी, इनसाइट्स और डैशबोर्ड उन्हें यहाँ पर क्रिएट करवाना है। ये उन्हें पूरी सारी चीजें चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने वो प्रोजेक्ट ले लिया और हमारी कंपनी का जो मैनेजर है उन्होंने डेटा एनालिस्ट को ये पर्टिकुलर मेल लिखा। I have attached the following 3 data sets from XYZ Private Limited, customer demographic, address or transaction. Please review the quality of the data to ensure that it is appropriate for our analysis in phase 2. All right. Please make a note of any assumption or issues we need to discuss with the client as well as any recommendation going forward to mitigate current data quality concerns. अब यहाँ पर हमें करना क्या है उसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चेकिंग द डेटा क्वालिटी यूजिंग एक्सेल। उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे डेटा इनसाइट का, और उसके बाद हम यहाँ पर टैब्लू को यूज करते हुए डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो? ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द डेटा। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक, आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक। डू यू वांट द लिंक अगेन? डू यू वांट द लिंक अगेन? दिस इज द लिंक। ओके, दिस इज द लिंक। यहां से आपको ये पर्टिकुलर डेटा सेट को डाउनलोड करना है। ये जैसे आपको डाउनलोड हो जाता है उसको अनजिप करना है और उसके अंदर 2 फाइल आपको मिलेंगी, रॉ और फाइनल। ठीक है, टेस्ट, रॉ और टेस्ट। रॉ डेटा को आपको ओपन करना है। ऑलराइट, रॉ डेटा को आपको ओपन करना है। ओपन एक्सेल में आपको ओपन करना है। इज इट विजिबल टू ऑल? एक्सेल फाइल इज विजिबल टू ऑल? So should I just start creating the project? Should I just start creating the project? Yes or no? Anyone has any query before starting? Which data set to download? Again, I already said, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, I am sharing this for the lifetime. Last time, not the lifetime. Last time मैं इसको शेयर कर रहा हूं। ये लिंक पर जाके आपको डेटा डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है। Is that clear? Should I just continue now? Should I just continue now? How to download? I've told this for 3 times, telling this for the last time. आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है? This is the link, this is the link, this is the link. You have to visit the link. यहां से आपको डाउनलोड करना है। Okay? Should we just start? Yes or no into the chat? साइन अप करने, अरे साइन अप करने से क्या हो गया? साइन अप तो कर सकते हैं आप। चलिए अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी बार ये शेयर कर दिया है। आपने जैसे ही फाइल डाउनलोड की उसमें आपको जिप फाइल मिल जाएगी और जिप फाइल के अंदर आपको 2 फाइल्स मिल जाती हैं, रॉ फाइल और टेस्ट फाइल। आपको रॉ फाइल को ओपन कर लेना है। रॉ फाइल के अंदर आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं जिसमें आपको ट्रांजैक्शन शीट के ऊपर जाना है और ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें से ब्लैंक्स को रिमूव करना है, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, तो वो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक मंथ का कॉलम बनाएंगे। ये हमारे पास डेट है, डेट में आपके पास डे भी होता है, मंथ भी होता है और आपके पास ईयर भी होता है। तो उस डेट में से हम मंथ फैच करेंगे, तो हम एक मंथ का भी कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास लिस्ट प्राइस है और स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो लिस्ट प्राइस में से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और हम यहाँ पर प्रॉफिट भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो पहला स्टेप क्या है, जब मैं जूम करता हूं तो मेरे पास रो 1 में ये नोट लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज व्हाट इज इट? इट इज अनवांटेड डेटा, सो आई हैव टू डिलीट दैट। आई हैव टू डिलीट दैट। नाउ जस्ट क्लिक ऑन 1 पर राइट क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। राइट डीडी इनटू द चैट। अगर आपने डिलीट कर दिया, राइट डीडी इनटू द चैट। राइट डीडी इनटू द चैट इफ यू हैव डिलीटेड इट।
जो लोग फोन से ज्वाइन किए हुए हैं और इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप बस यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, बस आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ चुके हैं वही आपको ड्रॉप करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहली रो क्या थी, अनवांटेड डेटा थी, तो इसलिए हमने उसे ड्रॉप कर दिया। अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सभी, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ब्लैंक्स कैसे रिमूव करने हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+A हिट कीजिए जिससे पूरा डेटा आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो चुका है तो राइट डाउन SD into the chat, select done into the chat, select done into the chat, SD into the chat, SD into the chat। Ctrl+A हिट करना है, बस Ctrl+A हिट करेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद Ctrl+G हिट करना है, Ctrl+G हिट करना है, इससे आपका ये गो टू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। राइट डाउन GD into the chat, GD into the chat। अगर आपके पास ये गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ चुका है, Ctrl+A हिट कर दिया, सारे सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, और उसके बाद Ctrl+G हिट करना है, इससे ये गो टू ऑप्शन हमारे पास आ जाए। इसके बाद स्पेशल पे क्लिक करना और ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अगर ये लिस्ट आ गई है, राइट डाउन लिस्ट इनटू द चैट, राइट डाउन लिस्ट इनटू द चैट गाइस। कमांड फॉर मैक भी वही है, Ctrl+G। कमांड नहीं यूज करना है आपको, Command+G यूज नहीं करना है, Ctrl+G यूज करना है। ओके, ये लिस्ट आपके पास ओपन हो गया आगे, इसमें से ब्लैंक्स आप चूज कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके आपने कर दिया, ब्लैंक्स आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे सारे ब्लैंक्स आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप होम में जाकर डिलीट में जाइए, डिलीट सेल पर क्लिक कीजिए और इंटायर रो पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अगर ये पूरा प्रोसीजर आपका हो चुका है, राइट डाउन BD इनटू द चैट, ब्लैंक्स डन इनटू द चैट, ब्लैंक्स डन इनटू द चैट। अगर सारे प्रोसीजर आपके हो चुके हैं, BD इनटू द चैट। ऑलराइट, सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे प्रोसेस फिर से रिपीट करना चाहिए? चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अभी कवर करनी है। न्यू कस्टमर लिस्ट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन में ये करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमारी ये थी कि ये जो हमारे पास अनवांटेड रो है इसको आपको डिलीट करना है। तो 1 पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। ये आपका डिलीट हो गया। अब पूरी शीट में ब्लैंक्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पूरी शीट में ब्लैंक्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। विच फाइल टू ओपन, रॉ फाइल, ठीक है। पूरी शीट में ब्लैंक्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए Ctrl+A, Ctrl+A। चलिए मैं चैट में सबके लिए लिखता हूं। ये देखिए सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। Ctrl+A, उसके बाद Ctrl+G, फिर स्पेशल पे क्लिक करना है और फिर ब्लैंक्स पर क्लिक करना है। ओके, Ctrl+A, Ctrl+G, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास, स्पेशल पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इससे आपके सारे ब्लैंक्स यहां पर देखिए, सारे ब्लैंक्स आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद होम टैब के अंदर राइट हैंड साइड में यहां पर डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, डिलीट सेल्स, और यहां पर एंटायर रो को डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगर ये आपका हो चुका है, राइट डाउन ब्लैंक्स डन इनटू द चैट, राइट डाउन ब्लैंक्स डन इनटू द चैट, BD इनटू द चैट, BD इनटू द चैट गाइस, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। BD into the chat, BD। ओके, ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है,
नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा ये है कि यहां पर हम मंथ्स का कॉलम क्रिएट करने वाले हैं। तो मंथ्स लिखिए बस यहां पर और उसे बोल्ड कर दीजिए। राइट डाउन MD इनटू द चैट, मंथ्स डन इनटू द चैट। ठीक है, अब मंथ्स आप निकालेंगे कैसे? इक्वल टू लिखिए, मंथ का फॉर्मूला लिखिए, मंथ लिखिए पूरा, और यहां पर D2 पास कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको लिखना है और मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए, इक्वल टू लिखना है, सबसे पहले मंथ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और D2 लिख के पास कर दीजिए। शेयर्ड विद एवरीवन। ओके, जैसे ही आप इसको हिट करते हैं यहां पर 2 आ जाएगा। मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर D2 क्या है, D2 मेरा वो प्लेस है जहां पर डेट लिखी हुई है। डेट लिखे हुई है, वहां से हम उसमें से मंथ निकाल रहे हैं, मंथ निकाल रहे हैं। सिर्फ डेट है, डेट में आपका डे भी हो गया, मंथ भी हो गया, ईयर भी हो गया, मैं उसमें से सिर्फ मंथ निकाल रहा हूं। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो यू कैन राइट 2 इंटू द चैट अगर आपका 2 आ चुका है। अगर आपका 2 आ चुका है तो 2 लिख दीजिए, और जिसका नहीं आया है प्लीज डोंट राइट रिपीट। जो एरर है वो एरर लिखिए, रिपीट मत लिखिए। रिपीट का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अगर आपके पास वैल्यू एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए, इक्वल टू मंथ आप लिखिए। ये मंथ ब्रैकेट स्टार्ट जैसे ही हो जाता है, आपको ये पर्टिकुलर कर्सर ले जाना है अपने पर्टिकुलर डेट के कॉलम पे। ट्रांजैक्शन डेट जहां पर लिखा हुआ है ना, वहां पर जाइए और एंटर हिट कर दीजिए। ये देखिए फिर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को मुझे पूरे कॉलम में निकालना है। यहाँ पे पूरे कॉलम यानी कितने कॉलम है हमारे पास? 19,446। तो इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सेल पे जाना है, लास्ट सेल पे जिसमें आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। राइट हैंड साइड बॉटम पे जाना है। जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड बॉटम पर, कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्लस साइन। वहां पर डबल टैप आप कर दीजिए, डबल टैप कर दीजिए, और ये पूरा हो गया आपका। डबल टैप अगर आप कर देते हैं तो ये पूरा ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो चुका है। अगर ये हो चुका है, राइट डाउन MD इनटू द चैट, MD इनटू द चैट गाइस। ओके, इसके बाद हम यहां पर एक और कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम है प्रॉफिट। राइट डाउन PD इनटू द चैट। अगर प्रॉफिट हमने कर दिया, PD इनटू द चैट, और PD में हमें क्या करना है, सिंपली लिस्ट प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस कर देना है। तो हम इक्वल टू लिखेंगे, जाएंगे सीधा लिस्ट प्राइस पर, फिर हम माइनस लिखेंगे और जाएंगे सीधा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, और एंटर हिट कर देंगे। तो K2 माइनस L2 हम कर रहे हैं यहां पर, K2 माइनस L2 हम कर रहे हैं यहां पर। अगर ये सबका हो चुका है तो राइट डाउन PD इनटू द चैट, और उसके बाद अगेन इसको भी पूरे कॉलम में यहां पर रिपीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली राइट हैंड साइड बॉटम पे जाके डबल टैप कर देना है। अगर आपने ये कर दिया है, राइट डाउन ऑल डन, या फिर आप लिखिए ट्रांजैक्शन शीट का, क्योंकि डन हो चुका है, TD इनटू द चैट, TD इनटू द चैट, TD इनटू द चैट। अब स्पेसिफिकली बताइए किसी को क्या प्रॉब्लम आई, किस स्टेप में प्रॉब्लम आई। रिपीट मत लिखिएगा, रिपीट का कोई सेंस नहीं है। किस स्टेप में प्रॉब्लम आई है वो आप स्पेसिफिकली आप मुझे बता सकते हैं। हाउ टू डबल टैप? डबल टैप कुछ नहीं है, आप यहां पर बॉटम में जाएंगे, ये सेल है, ठीक है, बॉर्डर होता है, राइट हैंड साइड बॉटम में जाएंगे, कर्सर को ले जाएंगे, यहां पर आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लस में हो गया डबल टैप कर दीजिए, यानी कि 2 बार क्लिक कर दीजिए। माई मंथ इज कमिंग आउट डिफरेंट, दैट डजेंट मैटर, आपके पास डिजिट तो आ रही है ना। हाउ टू फाइंड प्रॉफिट? प्रॉफिट में हमने क्या किया है, लिस्ट में से, लिस्ट प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दी है। I downloaded data, I shown me not same data set in your PPT। PPT पीछे निकल गया, ये डेटा सेट है। Why write to?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज K2? K2 इज द एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं कस्टमर डेमोग्राफिक में। कस्टमर डेमोग्राफिक में जल्दी से जिसने ऑलरेडी कर लिए थे टास्क, वो जल्दी से इसमें से ड्रॉप कीजिए रो को और ब्लैंक्स ड्रॉप कीजिए, और जिसको ब्लैंक्स ड्रॉप करना नहीं आया, रो ड्रॉप करना नहीं आया, वो यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक है, जल्दी से जिसने कर लिया है वो जल्दी से कीजिए, और यहाँ पर जल्दी से डन लिखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप फोकस कीजिए जिसको यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आई है। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम अनवांटेड डेटा हटा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर, और यहाँ पर 1 पर राइट क्लिक करते हुए आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दीजिए इसे। इज इट डन? डिलीट डन। ओके, उसके बाद जिसका यहाँ पर ब्लैंक्स आपको जिसे समझ में नहीं आया, ब्लैंक्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कंट्रोल+A हिट करना है सबसे पहले। कंट्रोल+A हिट करना है, उसके बाद कंट्रोल+G हिट करना है। कंट्रोल+G हिट करने के बाद स्पेशल आपके पास ये आ जाएगा, ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें से स्पेशल क्लिक करेंगे, फिर ब्लैंक्स क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर डिलीट में जाना है। डिलीट सेल में हमें एंटायर रो को डिलीट कर देना है और ओके कर देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये सबका हो चुका है दोनों चीजें। ब्लैंक्स डन इनटू द चैट गाइस, BD into the chat. BD into the chat guys. ओके, अब इसके बाद अगर आप डिफॉल्ट कॉलम देखेंगे, इसमें भी आपके पास अनवांटेड डेटा ही है। ऐसा डेटा है जो आपके काम का नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो डिफॉल्ट कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए। राइट डाउन DD into the chat. डिफॉल्ट डन into the chat. डिफॉल्ट डन into the chat. ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर और क्या करना है, आपको यहां पर जेंडर पर फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर कैसे लगाना है, प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन दिस। कंट्रोल+A, डेटा टैब के अंदर जाना है। ये जो फनल हमें दिखाई दे रहा है, बस इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने यहां पर ये कर दिया है तो आपका कुछ इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा। So write down FD into the chat, filter done into the chat. Control+A, डेटा टैब के अंदर जाना है। ये जो फिल्टर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। फिल्टर डन। डिफॉल्ट कैसे डिलीट किया, के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और उसे डिलीट कर दिया। फिल्टर डन और नॉट गाइस, फिल्टर डन। ओके, अब यहां पर देखिए फिल्टर हो गया हमारा। फिल्टर के बाद जैसे ही आप जेंडर पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको F भी दिख रहा है फीमेल के लिए, फीमेल भी दिख रहा है, फीमेल विदाउट E भी दिख रहा है, राइट। उसके बाद M भी दिख रहा है और मेल भी दिख रहा है। यहां पर एक्सेल को लग रहा है कि 5 कैटेगरीज है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ 3 कैटेगरीज है। तो 5 कैटेगरीज को आपको 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फीमेल, मेल और एक यू भी आ रहा होगा। किस किस के डेटा में यू आ रहा है, किस किस के डेटा में यू लिखा आ रहा है, तो वो है अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अगर यू नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू का मतलब है अनस्पेसिफाइड। तो यू तो वैसे भी वैसा ही रहने वाला है, हम सिर्फ मेल और फीमेल पे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले। ठीक है, तो जिसने फिल्टर नहीं लगाया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको करना क्या है, मेन प्रोसीजर ये है कि डी पर आपको क्लिक कर देना है, पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट कर देना है। राइट DD into the chat, राइट DD into the chat। अगर पूरा आपने सिलेक्ट कर लिया है, राइट DD into the chat। उसके बाद आपको होम के अंदर जाना है और यहां पर फाइंड एंड रिप्लेस आपको दिख रहा होगा। फाइंड एंड रिप्लेस में आपको रिप्लेस पे जाना है। ओके, रिप्लेस पे जाना है। फाइंड व्हाट, फीमेल पूरा लिख दीजिए,
फीमेल को हमें किससे रिप्लेस करना है, एफ से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। राइट डाउन एफ डन, एफ डी इंटू द चैट, एफ डन इंटू द चैट अगर ये हो चुका है। एफ डी इंटू द चैट गाइज। ऑलराइट, एफ डी हो गया हमारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फीमेल में से ई हटा देंगे और फिर से रिप्लेस ऑल कर देंगे। उसके बाद हम फीमेल की जगह मेल लिख देंगे और अब हम एम रख के उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर अब आप चेक करेंगे तो जेंडर में सिर्फ हमें 2 कैटेगरीज, या फिर अगर आपके में यू है तो 3 कैटेगरीज दिखाई दे रहा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? हमने यहां पर सिंपली जो डेटा है उसको मॉडिफाई कर दिया है। फीमेल की जगह हमने एफ लिख दिया है, फीमेल विदाउट ई की जगह भी हमने एफ लिख दिया है, मेल की जगह हमने एफ एम लिख दिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट, यस और नो इनटू द चैट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट अबाउट यू? यू ऐसे ही रहने देना है आपको। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा हो चुका है। राइट डाउन कस्टमर डेमोग्राफिक डन, यानी कि सीडी इनटू द चैट, सीडी इनटू द चैट। अब कस्टमर एड्रेस में चलते हैं। यहां पर फिर से हमें पहला रो डिलीट करना है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें यहां पर ब्लैंक्स चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ब्लैंक्स है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे नॉर्मली हमें ब्लैंक्स चेक करने चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है, फिल्टर जिसको समझ में नहीं आया और फाइंड एंड रिप्लेस जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज फोकस यहां पर कीजिएगा। वही सेम प्रॉब्लम यहां पर है। तो फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A, डेटा के अंदर हम जाएंगे, डेटा टैब जो है, और इसके अंदर ये जो फनल हमें दिखाई दे रहा है, सिंपली ये क्लिक कर देना है, हमारा फिल्टर लग चुका है। स्टेट में अगर आप देखेंगे यहां पर हमें न्यू साउथ वेल्स भी लिखा हुआ है, NSW भी लिखा हुआ है, विक्टोरिया भी लिखा हुआ है, VIC भी लिखा हुआ है। तो हमें विक्टोरिया को VIC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यू साउथ वेल्स को NSW में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये पर्टिकुलर कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब के राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, तो रिप्लेस पर क्लिक करना है। अब फाइंड क्या करेगा, ये न्यू साउथ वेल्स, राइट, और ये NSW, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। इसके बाद क्या करेगा, विक्टोरिया, जस्ट अ सेकेंड, विक्टोरिया, और इसको किससे रिप्लेस करना है, VIC से, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ओके, स्टेट अब अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 कैटेगरी। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट गाइस। Yes or no into the chat, guys? Should we just move on to the next task? How to deal with default? Default आपको delete करना है। All right. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने जो पूरा डेटा क्वालिटी चेक कर लिया है, अब हमको रिपोर्ट बिल्ड करनी है। तो रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे चलते हैं यहां पर किसके ऊपर, जो रिपोर्ट हमने बिल्ड करके रखी हुई है। तो रिपोर्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर राघव जो है वो हमारे क्लाइंट है और उनको ये रिपोर्ट हमने लिख के दी है। वी अप्रिशिएट यू प्रोवाइडिंग अस विद द 3 डेटा सेट्स फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड. A brief summary of the issues associated with the data set is provided below. If you encounter any difficulties, please let me know. Customer demographic में gender inconsistent है, age missing है, blanks हैं job titles में, customer address में state जो है वो inconsistent है, transactions में transaction का month नहीं है और profit भी missing है। क्या सजेशन हम देना चाहते हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि प्रोवाइड जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि वहां पर
फीमेल के लिए एफ भी लिखा हुआ है, फीमेल भी लिखा हुआ है, फीमेल विदाउट ई भी लिखा हुआ है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हम उनसे कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी आप रखिए। उसके बाद हम उनसे क्या कह रहे हैं, एड एन एक्स्ट्रा कॉलम विद द एज ऑफ द कस्टमर, टेक केयर ऑफ द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स बहुत ज्यादा थे। एड ट्रांजैक्शन मंथ हमें क्रिएट करना पड़ा, इंक्लूड अ प्रॉफिट कॉलम ये हमें क्रिएट करना पड़ा। तो ये सारी चीजें हमने लिखकर एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर की। ये और ज्यादा डिटेल हो सकती है बेस्ड ऑन द कि क्या चीजें चाहिए क्लाइंट को। ओके, इज दैट क्लियर? Is that clear to all? Yes or no? Should I just move on to the next task, that is Tableau? Yes or no into the chat? Yes or no into the chat, guys? Just a second, just a second. Something is wrong. Something is wrong, guys. Let me just check it, all right? All right. ओके, चलिए। ओके, मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अच्छा, अब आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो 2 मिनट्स तक मैं यहाँ पर क्वेरीज ले सकता हूँ, सिर्फ 2 मिनट तक। और करियर रिलेटेड क्वेरीज आप ना पूछिएगा। हाउ टू जनरेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देखिए, जब आप बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखेंगे, ये आपको मैनुअल टास्क है जो आप डेटा के बेसिस पे, इनसाइट्स के बेसिस पे क्रिएट करते हैं, तो कुछ ऑटोमेटेड चीज नहीं है। लिंक फॉर डेटा सेट, विजिट माई प्रोफाइल, जो मैंने प्रोफाइल शेयर की थी कैगल की, उसको विजिट कीजिए। हाउ टू एक्सेल डाउनलोड, एक्सेल तो आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। शैल बी ओपन द सीट इन टैब्लू, टैब्लू की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, 2 घंटे के अंदर सारी टेक्नोलॉजीज को सीखना पॉसिबल नहीं है, राइट? डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट? 2 घंटे के अंदर सारी चीजें सीखना पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमने आज एक्सप्लोर की, राइट? तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर आने वाले डे 3, डे 4, डे 5 को, प्लीज फोकस ऑन दिस, डे 3, डे 4 और डे 5 को हम यहाँ पर डिटेल ट्रेनिंग लेंगे टैब्लू के बारे में। तो अभी जो मैं टैब्लू के बारे में आपको बताऊंगा वो जस्ट ओवरव्यू बताऊंगा कि किस तरीके से टैब्लू काम करता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, ऑलराइट। तो आप जो क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मुझे पता है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन का उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि ये टास्क परफॉर्म कैसे हुआ, तो मुझे पता है कि वो आप नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। उसके लिए आपको पहले टैब्लू डाउनलोड करना है, फिर उसकी फंक्शनैलिटी समझनी है, तब आप समझ पाएंगे कि ये डैशबोर्ड मैंने कैसे बनाया। इज दैट क्लियर टू ऑल? अभी आपको डाउनलोड नहीं करना है। डे 3, डे 4, डे 5 में हम आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे अबाउट टैब्लू। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो? ओके, तो यहां पर टैब्लू का मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। सबसे पहले टैब्लू किस तरीके से काम करता है, तो यहां पर टैब्लू की जो सबसे खासियत बात है, इसमें 3 तरीके की चीजें होती हैं। सबसे पहले आप कनेक्ट करते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं, और उसके बाद आप शेयर करते हैं। तो पहली जो चीज है कि कनेक्टिंग की, तो यहाँ पर कनेक्टिंग का हमें एक वाइड एरिया मिलता है, हम ज्यादा चीजों से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। हम एक मतलब जो भी पॉसिबल डेटा सोर्सेज हैं उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। कौन से डेटा सोर्सेज हैं? जैसे अलीबाबा का सर्वर हो गया, अमेजॉन का सर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर अपाचे का है, डेटाब्रिक्स है, गूगल के जितने भी सर्वर्स हैं, एसक्यूएल है, यहाँ पर स्पार्क है। तो जितने भी पॉसिबल डेटा सर्वर्स हैं इनटू द वर्ल्ड, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। अब यहाँ पर दूसरी चीज एनालाइज, एनालाइज के लिए हम क्या करेंगे, फाइल एक अटैच करता हूँ। जो डेटा सेट मैंने आपको दिया था, उस डेटा सेट में से एक डेटा सेट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आर्काइव में से रॉ डेटा था, एक टेस्ट डेटा था, तो टेस्ट डेटा को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल टिपिकल स्टाइल में हम चलेंगे। टेस्ट डेटा में पता है आपका क्या है, जो टास्क मैंने इस वर्कशॉप में परफॉर्म करवाए हैं वो टेस्ट डेटा में ऑलरेडी परफॉर्म्ड है।
तो अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया, तो आप टेस्ट डेटा की जो शीट है उसको ओपन करके देख लीजिए, वहां पर आपको फॉर्मूला लिखा दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो टास्क परफॉर्म किया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये हमारे पास शीट आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी शीट्स भी दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए कि मैंने ट्रांजैक्शन शीट ओपन कर दी। ठीक है, ट्रांजैक्शन शीट मैंने यहां पर कर ली है ओपन, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन शीट आ गई। अब यहां पर लिखा हुआ है नीड मोर डेटा, और डेटा आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको टेबल्स को ड्रैग करना होगा यहां पर और उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। तो ट्रांजैक्शंस के साथ मैं चाहता हूं कस्टमर डेमोग्राफिक। तो टैबलू जो है उसके अंदर इनबिल्ट एआई इतनी ज्यादा है कि आपको ज्यादातर टास्क परफॉर्म ही नहीं करने होते, टैबलू खुद कर देता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने डेटा डाला हुआ है, अगर और डेटा डालता हूं उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप बिल्ड होना है वो टैबलू खुद कर देगा। आप देखिएगा कस्टमर डेमोग्राफिक में यहां पर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूं, टैबलू एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। कैन यू गाइस सी दैट? कैन यू गाइस सी दैट? यस और नो इनटू द चैट? कैन यू गाइस सी दैट? यस। इसको जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूं, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहां पर इसने मुझे बताया, टैबलू ने मुझे बताया है कि ये कैसे यहां पर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। ट्रांजैक्शन जो शीट है उसमें कस्टमर आईडी जो है वो इक्वल है कस्टमर डेमोग्राफिक शीट के कस्टमर आईडी से। तो यहां पर इस तरीके से चीजें यहां पर हमारे पास हैं। शीट जैसे ही जाता हूं, शीट के अंदर जाता हूं, मेरे पास ट्रांजैक्शन भी आ गया मेरे पास, और मेरे पास यहां पर कस्टमर डेमोग्राफिक दोनों चीजें आ चुकी हैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर जल्दी जल्दी मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है क्योंकि मुझे पता है आपके पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको क्यों नहीं पूछना है? क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं मैं डे 3, डे 4, डे 5 में डिटेल ट्रेनिंग अबाउट टैबलू, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू डाउनलोड द टैबलू, हाउ यू कैन गेट द लाइसेंस ऑफ टैबलू, एंड गोइंग टुवर्ड्स के किस तरीके से आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और उस डैशबोर्ड को आप डाउनलोड कैसे करते हैं और पब्लिक कैसे करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो यहां पर बस मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं कि किस तरीके से शीट्स आप क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से हम एक्सेल में शीट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से यहां पर भी है, उसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहां पर रीनेम सबसे पहले करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। मंथ के बेसिस पे एक आइडिया समझते हैं कि क्या मैं यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं इसका एक आइडिया समझ लेते हैं। मैं यहां पर एक प्रॉफिट्स का एवरेज का डैशबोर्ड बनाने वाला हूं, लेकिन एवरेज डैशबोर्ड क्या मतलब हुआ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज मुझे कितना जनरेट हो रहा है वो मैं पता लगाना चाहता हूं। पर मंथ कितना एवरेज आ रहा है मेरे पास प्रॉफिट का, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डेमोग्राफिक, मेल से कितना आ रहा है, फीमेल से कितना आ रहा है, ये मैं पता लगाना चाह रहा हूं। डिफरेंट ब्रांड से कितना आ रहा है ये मैं पता लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट? इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम यहां पर मंथ सर्च करते हैं जो कि हमने क्रिएट किया है। मंथ हमने क्रिएट किया है, राइट? ये मैंने कॉलम्स में डाल दिया, ये हमारे पास आ गया। जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब आप सोचिए कि हमारे पास तो 1 2 3 में नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पर जनवरी फरवरी कैसे आ गया? क्योंकि टैबलू ने ऑटोमेटिक उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट भी हमने क्रिएट किया था। प्रॉफिट को ये जो एबीसीडी है ना, जो डेटा है वहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप जैसे ही कर दिया ये सम आ चुका है, टोटल कितना जनवरी में हो गया। लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए सम की जगह मैं यहां पर कर देता हूं एवरेज, तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि टैबलू के अंदर इनबिल्ट एआई बहुत ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव सिलेक्टेड, मैंने यहां पर उसे पता है कि टाइम सीरीज का डेटा मैंने सिलेक्ट किया है। मैं टाइम की बात कर रहा हूं, जनवरी फरवरी में ये जो मंथ है वो टाइम की बात कर रहा हूं। उसके बाद मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे शो मी पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो टैबलू मुझे खुद बता देता है कि ये विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप ये विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सब को आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कौन सी विजुअलाइजेशन सबसे बेस्ट रहेगी वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैं क्रिएट कर सकता हूं वो तो अनब्लर्ड है, लेकिन बहुत सारी ब्लर्ड हैं जिनको मैं क्रिएट नहीं कर सकता यूजिंग दिस डेटा, जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं इस विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं इंटायर स्क्रीन कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब ये डेटा कहता क्या है ये हम समझ लेते हैं। हमारे पास मंथ्स के नाम है और कलर में डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर में डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कलर का डिफरेंस हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, जितना कम यानी कि जितना लाइट कलर होगा उतना कम क्वांटिटी है, जितना डार्क कलर होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर है। फेब में सबसे लाइट कलर है तो उसमें एवरेज प्रॉफिट आप देखेंगे 545 का है,
नवंबर में डार्क कलर है तो उसका एवरेज प्रॉफिट देखेंगे 567 का है। तो क्वांटिटी जितनी है, नंबर जितना छोटा या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग कलर का डिफरेंस यहां पर है। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? इसे हम कहते हैं ट्री मैप। तो क्या अगली बार आपको ट्री मैप दिखाई दिया, आप समझ जाएंगे कि ट्री मैप किस तरीके से आपको रीड करना है? यस यस राइट ओके। अब हम दूसरा यहां पर एग्जांपल देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर हम देखना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने जेंडर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जेंडर मैंने सर्च किया, ये जेंडर मैंने यहां पर डाल दिया। सेम प्रोसेस मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर आ चुका है, नल